वैसे भी आपको PR Okay, good morning. So today we will see कि हम जावा में जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था इन प्रीवियस क्लास रिगार्डिंग स्विच केसेस. So how can we write a switch cases in Java? So we will see. Is the screen visible to all? Yes, sir. Okay, chalo. Now we have to create a new file. Java file, Java class file. ठीक है. सो इसमें आपको है ना जावा के अंदर अलग अलग कैटेगरीज मिलती है. जैसे कि अगर आपको जावा सिंपल क्लास फाइल बनाना है तो जावा क्लास फाइल बना सकते हो. अगर आपको एप्लेट विंडो बनाना है, एप्लेट विंडो मतलब कि अगर आपको वेब पेज डिजाइनिंग करना है या वेब पेज आप बना रहे हो, ठीक है, तब आपको एप्लेट लगता है. जावा एप्लेट करके HTML CSS जैसे एक जावा एप्लेट रहता है जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए रहता है. ठीक है. फिर इसके बाद कैटेगरीज में और भी अलग अलग कैटेगरीज रहती है. जावा फिर स्विंग, ये कंपनीज में यूज होता है. ठीक है. जावा बीन्स, AWT. ठीक है. ये अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रहते हैं. ठीक है. तो फिर इसमें आप SQL फाइल भी क्रिएट कर सकते हो अपनी, जो कि आपको डेटाबेस में एंट्री करने के लिए, अपडेशन वगैरह करने के लिए आपको SQL फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. जावास्क्रिप्ट फाइल फ्रंट एंड के लिए, HTML HTML फ्रंट एंड के लिए. ठीक है. तो अभी इसमें हमारा प्रैक्टिकल पूरा रहेगा जावा क्लास पे. नेक्स्ट, अब क्लास नेम दे देते हैं हम किसके ऊपर, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं स्विच के. तो स्विच क्लास नेम इज ऑलरेडी स्विच. ओके, स्विच 1. ठीक है. देन फिनिश. Okay. So this is your basic structure of writing a program. Public class and class name. So whatever will be the class name will be same as it is your file name. So class name and file name should be same. Now we have to write a switch case program. So first statement is to write main function. Okay, since we are declaring and defining switch case in a single class only, so we have to write main function starting public static void main string arg, bracket open. Now in this case what we have to do, we have to take an input character. Okay, for defining a switch case, whether which switch case will should be required, which switch case is required by the user. Okay, so for that we have to take a character. So character is take as an option. Okay, then we have to print. Okay, so let's print use the character. Okay, then we have to give them show the options, what different type of switch case we have. So first was our if else, second was our while, third was our for, fourth was our do while. Okay.
Now it's done. Okay, now we have to create a switch case. So switch and argument will be the op your variable option. Okay, so variable option will contain a value which will directly switch it to the particular case. So we will write switch option. What are you showing? Uh, we have initially we have input switch option equal to 0. ये मैं आपको आगे बताता हूँ. Okay. So case 1. What is your first case? If else. So we have to create an if else. If else, suppose int num1 equal to 20, num2 equal to 30. If num1 is greater than num2, what we will write? System println num1 is greater, else system out dot number 2 is greater. Okay, so we have created a first case of if else. Here we have taken two input number 1 and number 2, and we have compared between them, and whatever will be the greatest number, that also will be shown. So this switch case 1 is over. Now we have to write case 2. Case 2 is while. So while I is less than 5, suppose print we are in while loop. So if we have initialized I is less than equal to 5, less than 5, so we have to increment 2. Okay, so we can increment inside the while loop body of a particular variable. We have incremented here, but it's showing an error that I is not initialized. So first we have to declare a variable int I equal to 0. Okay. Then int I equal to 0, we have set a value of I is equal to 0, and we have defined a while loop while I is less than 5. So जब तक कि आपका 5 I की वैल्यू लेस देन 5 नहीं रहेंगी, मतलब 0 to 4 तक आपका ये while loop चलेगा, and it will print PR in a while loop, and after printing each PR in a while loop statement, it will increment by 1. Okay, so this case also is done. Now we have to write case 3. What is your case 3? It is for loop. So in for loop, what we write? For x equal to 0, x is less than equal to 4, x plus print system out print we are in for loop. Okay, but again we have not declared x, so we have to declare x in x. Okay, now it's done. So case 3 also is done.
for loop. Now case for what is the case for do while? So do while है, so first we have to write do what system println we are in do while loop. कब तक आपको do को करते रहना है? while I is less than 3. ओके, I के बजाय आप a, ठीक है, while a is less than 3, but you have not declared a variable, so here write int a equal to 0, and you have also not increment a variable, so here increment a plus plus. Okay. Switch case 4 is also done. Now we are done with 4 switch cases. Now we have to write a default one. If a user choose a different option beside this switch cases, so we have to write a default one, which will throw an error where we have chosen an incorrect option. Incorrect option, and we will write please try again. But here we have not write break statement. Okay, in every case we have to write break. I have already told you meaning of break. Break means your compiler will stop the execution at that particular statement only and will directly go out from the particular loop. Okay. हो गया. अब इसमें और क्या बचा है? आपको आपके हिसाब से इसमें और क्या लिखना बचा है वो बताइए. इसमें और क्या आ रहा है या फिर और इसमें कुछ लिखना बचा है क्या? ये आपका प्रोग्राम है, एक बार देखिए, बताइए इसके बाद. कोई भी बता सकता है कि इसमें क्या और लिखना बचा है? फंक्शन नहीं. अच्छा, ये जो एरर बता रहा है ऑप्शन पे, ए क्या एरर थ्रो कर रहा है? देखो, हमने जो स्विच केसेस आएंगे सर वहाँ पे. नहीं, देखो बताता हूँ. देखो, हमने जो स्विच केसेस क्रिएट किए हैं, हमने केस नंबर क्या दिया है? 1 2 3 4. ठीक है, तो ये केस नंबर आपके क्या है? इंटीजर वेरिएबल है. और हमने हमारे ऑप्शन जो रहेंगे, ठीक है, उसको हमने किस में दिया है? कैरेक्टर पे. सबसे पहले हमारा है कि हमको इसके लेना पड़ेगा इंटीजर में. अब नेक्स्ट हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, ऑप्शन. वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल एज अ option and its data type is integer, but we have not declared the value of the option कि हमारी इनिशियली में ऑप्शन की वैल्यू क्या रहेगी. ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे इनिशियली int ऑप्शन इक्वल टू हम 0 कर देते. ठीक है, ठीक है, 0 कर दिया. अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है क्या.
सी अभी इसमें एरर क्या आया, आपको प्रोग्राम तो रन हो गया है, पर इसमें आपका स्विच केस चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इनिशियली आपने ऑप्शन की वैल्यू क्या डाल दी है, 0। तो आपने ऑलरेडी स्विच केस को ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 0 आपने प्रोवाइड कर दी है, मतलब कि वो स्विच केस के अंदर जा ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर उसको ऑप्शन की वैल्यू अगर 1, 2 या 3 या 4 मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 पे वो जाके जंप करेगा। ये आपने इनिशियली ऑप्शन की वैल्यू क्या डाल दी इसमें, 0। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो तो क्या होना चाहिए, 1 हुआ है, ठीक है। और वो जाके 1 के स्विच केस में क्या, एंड उसने जाके प्रिंट किया नंबर 2 इज ग्रेटर। पर हमें तो यूजर से चूज करवाना है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी मैन्युअली एंट्री कर रहे हैं। सो हमें जब यूजर से चूज करवाना है, सो एट दैट टाइम हमें यूज करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन का, ठीक है। इनपुट फंक्शन मतलब जैसे कि हम C++ में सी इन का फंक्शन यूज करते थे यूजर से इनपुट लेने के लिए, सेम हमें जावा में भी इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो जावा में आपको इनपुट फंक्शन कैसे यूज होता है, यू हैव टू यूज अ स्कैनर पर क्लास। सो स्कैनर, ठीक है, देन input equal to new scanner system dot in. So this is your scanner class, ठीक है, क्या error बता रहा है, ठीक है। So this is your scanner class. We have to write a scanner, your variable name equal to new scanner system dot in. So we have write scanner input, पर हमारा input हमारा variable name है क्या, नहीं है। हमारा variable name क्या है, option. So you have to write here option, okay. So scanner option equal to new scanner system dot in. This means कि we are taking a input for the variable option from the user, okay. But before writing a scanner, we have to import a package of scanner. So add import java dot util dot scanner, ठीक है, ठीक है। सो वी हैव टू इनपुट पैकेज एज java.util.scanner। मैंने पैकेज का आपको डेफिनेशन बताया था कि whenever we are using any keywords or any function or any methods in a particular program, so at that time हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, व्हाट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड डिफाइन। So for that we have to import a package of subordinate package, या फिर जिस पैकेज के अंदर वो आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्कैनर किस लिए यूज करना पड़ेगा हमको इनपुट के लिए। सो हमने यहाँ पे स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्टेटमेंट हमें हर इसमें लिखना पड़ेगा। मतलब जहाँ जहाँ हम जो प्रोग्राम में हम स्कैनिंग का फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पे हम इनपुटिंग का फंक्शन यूज करते हैं, वहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। एंड उसके लिए हमको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट स्कैनर क्लास डिक्लेयर कर दिया, एंड वी हैव डिक्लेयर्ड अ जावा क्लास। अब देखते हैं एरर क्या आ रहा है। एरर क्या थ्रो कर रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप स्कैनर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू int, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे स्कैनर इनपुट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम डालते इंट ऑप्शन, तो क्या होगा, फिर भी एरर आ रहा। तो हो जाना चाहिए।
क्या आएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू और सोचो आप लोग भी एरर क्यों हो रहा है। ऑप्शन इक्वल टू 0 एंड इसको हम रन करें तो भी इनपुट नहीं हो रहा है। हो गया। सो सबसे पहले हमें जब भी इनपुट लेना पड़ेगा जावा में यूजर से, तो हमें सबसे पहले स्कैनर, फिर उसका वेरिएबल का नाम जो भी आप दे तो कुछ भी दे सकते हैं, XYZ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, उसके लिए फिर हमें उसका सबऑर्डिनेट उसका पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा पैकेज है इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। अब जब भी हम वेरिएबल में एंट्री ले रहे हैं यूजर से, यहाँ पे हम ऑप्शन है, ये वेरिएबल है, इसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। सो एट दैट टाइम हमें इंट ऑप्शन, हम C++ और C में हम कैसे लिखते थे, इंट ऑप्शन और सेमीकोलन डाल के हम छोड़ देते थे, तो हमारा डायरेक्टली सीन या फिर स्कैनर से हमारा इनपुट हो जाता था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर के लिए इंट ऑप्शन इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे इनपुट आएगा कोई इंटीजर वैल्यू यूजर के तरफ से, सो वो इंटीजर वैल्यू जाके असाइन होगी आपको कौन सी वेरिएबल को, ऑप्शन को। सो हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बोला 1 डाला, सो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट की वैल्यू क्या हो गई 1। सो 1 जाने किसको असाइन हुआ, आपके ऑप्शन को। सो ऑप्शन इक्वल टू 1 हुआ, ऑप्शन इक्वल टू 1 हुआ तो स्विच केस पे आया, स्विच केस आपका ऑप्शन। यहाँ पे उसने देखा 1, केस नंबर 1 किसका है, इसका है, तो डायरेक्टली केस 1 में गया, यहाँ पे इसने उसको पूरा एग्जीक्यूट किया। ठीक है, हमको आउटपुट दे दिया नंबर 2 इज ग्रेटर, एंड ब्रेक होके ये हमारे लूप के बाहर आ गया एट एंड ऑफ द कंपाइलेशन।
ठीक है, फिर से एक बार करके देखते हैं। चूज द कैरेक्टर 1 2 3। ठीक है, अब हम करके देखते हैं डू व्हाइल का। हमने डाला 4। ठीक है, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट स्टेट में हमारी वैल्यू चली गई 4 और ऑप्शन इक्वल टू 4 हो गया। सो हमारा 4 पे केस 4 पे जाके वी आर इन डू व्हाइल लूप ये प्रिंट होना चाहिए। तो डायरेक्टली केस 4 पे चले गए, वी आर इन डू व्हाइल लूप 3 बार प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसको प्रिंट कितने बार किया, व्हाइल इज लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब 0 1 2, पर 3 बार आपका प्रिंट होगा। तो समझा कि जावा में आपको स्विचेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको बनाना है, आपको इनपुट कैसे लेना है। इसमें कोई डाउट? देखो, सबसे बेसिक फंडा बता दो आपको याद रखने का, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको लगे तो। सबसे पहले कोई भी आईडी हो उस पे जाओ, क्रिएट प्रोजेक्ट करो, प्रॉपर प्रोजेक्ट नेम दो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास क्रिएट हो जाएंगी। सो क्लास नेम शुड बी सेम एज योर फाइल नेम। ठीक है, ये याद रखना है आपको हमेशा। फिर आपका क्लास क्रिएट हो गई और आपको फिर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, सबसे पहले पब्लिक क्लास और आपका क्लास नेम और कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपको मिलेगा। सो जब whenever you are using a single class, so at particular time you have to write a main function at the starting of only. So first write main function। main function कैसे लिखेंगे हम, public static void main string args। ठीक है, हमने मेन फंक्शन लिख दिया। नेक्स्ट, whenever you are using and whenever you are requiring any input from the user, so for that you have to firstly declare import, you have to declare a package at the starting of the class, and initial statement and first statement will be your package. In every Java program, your initial statement will be importing of all the packages that will be required in particular program। ठीक है, so import java dot util dot scanner। next we have to declare a scanner। so scanner, you can choose any of the variable, scanner input equal to new scanner system dot in। ठीक है, now next you have to, whenever you are inputting an integer character, write int any variable name and equal to input dot next int। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो ठीक है। सो अभी आपका ये हो गया। आपने कहा आपको C++ में मैंने बताया ही था कि स्विचेस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब आपको जावा मैंने खुद से क्रिएट करके बता दिया स्विचेस के बारे में।
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आज हम प्रैक्टिकल लेंगे तो उसमें हम कुछ और नए नए फंक्शन और कुछ नई नई चीजें देखेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।